Okay. Skill development board. Okay. Thank you so much. आइए मैम. आगे मत जाओ. हाँ. So you start from here. अशोक इधर दिखा. जैसे थे आने वाले अतिथि के लिए आशीष जय जय आशीष जय जय आशीष जय जय गोसाई पीछे मुड़ेंगे पीछे मुड़ गोसाई सोखाली पीछे. गोसाई थम मैम के बाद फिर उसको हम कर देंगे ना. एक माला पे हाथ रखो. गोसाई सोखाली ये आएंगे ना आगे को. गोसाई थम Next slide. So he is the founder. He just went there, and he was a philanthropist. And this college was established in 1969. And the governor in 1968 he laid the foundation of this college. And in 1969 the chief minister Shri Chandra Bhanu Gupta inaugurated our college. So this is our college profile. As I told you, the year of establishment is 1969, and we have got 3 programs: BA, BCom, and Education BA. And we have got 15 departments, and music, like we have got tabla, vocal, and sitar. That they come under the music department only, but we have got separate faculties from commission. And then we have got 19 aided and 33 we have got it right now. We have got in self-finance. There are 21 posts here, and 2 posts were lying vacant in psychology and in economics, and I think they were not like pursued
So I just wanted to tell you one more thing, that recently I joined here as a principal in October end. So all the data that is here, that all the work that has been done, that was before I took charge here. And when I saw that two posts were lying vacant for so many years, I had written to the Chief Minister, and we are very fortunate enough that both the posts, they have been advertised, re-advertised recently. And we've got 28 non-teaching staff, and we've got around 2,000 students in our college. So this is the vision and mission of our college, imparting education and learning skills to our students to enable them to play a meaningful role at home, workplace and in the society. And besides imparting wholesome education, to help students grow into self-respecting and self-confident young women. So I would also like to tell you that majority of the girls, they come from very low income group families, and so this college is giving the best to them so that they can do well in life after getting their degrees from here. So before joining here, I was there in Merit College. I have a teaching experience of 28 years. I was the Chief Proctor of Merit College, and in fact First Lady Chief Proctor in 130 years history of Merit College. And presently I am the RDC convener also in statistics, and these are my publications and books. This is the infrastructure of our college, and we've got a seminar hall, we've got a library, we've got a multi-purpose hall, we've got a very good parking area, we've got a canteen, and we've got all the buildings, like this is the main one, this is the administrative block, then we've got our faculties all in this main block too, and this is the commerce department, that is a separate building. So the objectives of this, what we want to give to our students, to introduce effective and efficient teaching and learning practices, to provide a platform to students for learning through latest resources, to develop students to become responsible citizens, to develop students intellectually and morally for nation building. That is the main purpose. So this is the institutional organogram. So we have got the management and the principal, and then student council, IQAC, head of the department, this is the office, library, we all work together, and the student council works under the various committees that we have formed for the betterment of our students, and all the faculty members, they are supported by the staff. Next. So this is the curriculum planning and implementation. We are affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut, and we follow the academic calendar and the curriculum of the university. So once we get the academic calendar, then we have our own institutional academic calendar, and work distribution and teaching plan, that is done in advance. The planning and the activities to support the curriculum, they are also planned in advance, and all the academic committees are set up for the smooth implementation of the curriculum. So for effective curriculum implementation, we have got an admission committee. So once all the admissions are over, we start with the academic calendar, and we have regular meetings of the head of the departments, and then when the head of the departments, they go to their own departments, they always communicate whatever we have discussed in this meeting. Then the implementation of teaching plan, that is done very strictly. Then we have got class tests and unit tests, so that our students, they can build confidence, like how they perform, the teachers interact with them, they tell their weaknesses, and then we've got this examination committee for internal examination and external examination. For curricular enrichment, we have got co-curricular activities, internship programs, the BA department looks after it. We've got guest lectures from time to time, industrial visits and tours, this is mainly done in commerce department. Then skill development courses, extension activities, that these are done by NSS and all. So this is the faculty profile. In commerce right now we've got 7, education we've got 4, psychology we've got 5, political science 4, home science 5, computer science 1, sociology 2, music tabla 1, music vocal 1, music sitar 1, drawing and painting we've got 5, history we've got 1,
Economics we've got 3, Hindi 4, Sanskrit 1, English 4. And out of these faculties, right now we've got 15 faculties who have qualified in NET. We have got 17 who have done PhD and 6 are pursuing the research, and MPhil we've got 8 faculties. So this graph shows how the faculties how they've gone for the faculty development programs. Total number of faculty, how many you said? Total this big for the slide before this, how many? We have got 19 aided and 33 we have got in self-finance. 19 aided. Aided, yeah. And 30? And 33 in self-finance. So this is the mechanism for examination grievances. We've got the senior superintendent, additional senior superintendent, assistant superintendent, and then invigilators. And for the internal assessment we've got the internal assessment committee. A very good thing that we have in our college is we keep taking feedback on regular basis. So we have it from the parents, we have it from the students, and we have it from the alumni. From the parents, we have got a parents' meet. Our college is the first college to start this. I don't think any college has PTM in our university. Then from the student, we have it online at the end of the semester by Google Forms and all. And from the alumni, we just interact with them whenever they are there and we can take their feedback. So the learning resources, in sports, in indoor games, we have the facilities for chess, carom, badminton, table tennis. For outdoor games, we've got athletics, kabaddi, kho-kho and tug-of-war. Talking about our classrooms, we've got 33 classrooms and we've got 7 labs, 1 in education, 1 in drawing and painting, 2 in home science, 2 in computer and 1 in psychology. And rooms for co-curricular activities, we have for NSS, Rover Rangers and sports. NCC has been introduced this year only. And we have got a separate block for NSS, NCC and Rangers. And the other rooms are IQAC office, we've got staff room, committee room, this is the committee room, examination room, proctorial board, office of the women harassment cell, office of the student welfare. Then we've got a career counseling and placement cell. So these are the rooms assigned for them. So these are the courses offered in our college: Hindi, English, Sanskrit, political science, sociology, home science, psychology, drawing and painting, music, tabla, economics, library, education and commerce. So you can see that this is showing the undergraduate courses, and the yellow one is the PG courses. I would like to tell you that drawing and painting and Hindi, they are the only 2 PG courses that are running in aided form. Otherwise, all of them are in self-finance. Next. This is the admission status. So the enrolled sanctioned seats in the year 2016 was 1095. Till here it was 1095. Now it has increased to 1125 because computer science and history, they were introduced last year only. So this is the this states the enrolled students, and you can see that there is a difference between the sanctioned seats and enrolled seats. This is because we have got 100 seats in B.Ed and they lie vacant. So we have worked in the last year, we have worked a lot. From 18, that has increased to 49 in the current year. This is a result for the final year students. So you can see that the pass percentage is very nice in our college. So we have a library, and in the library we have got This previous slide, previous. This This one? is overall. Overall, yeah. Meaning you take all the programs together. Yes, yes. So this is the total number. Students who have appeared for the exam, and these are how many passed. I thought I would show it through a graph. Any more thing, ma'am? So in the library, we have got an automation software version 6 of Alice for Windows, and right now I think we've got around 33,000 books in the library, and InflibNet we are using, and in the last 1 year the students and the teachers have been motivated to use it more.
and the circulation and online public access cataloging that was started in 2013. So this is the expenditure of purchase of books and subscription to journals and e-journals. So you can see that in this year, the expenditure is very low. So the COVID explains this, because students were not coming to the college and all. So I think that is the reason that the books were not bought here, and the expenditure is just 4,136. This is the expenditure incurred on maintenance of infrastructure. So I don't think this needs any explanation. Next. So student support, we just offer one scholarship, that is the government scholarship, and you can see that the number of students, majority of the students, they get the scholarship. It is from Social Welfare Fund. Samaj Kalyan, ji. And this is a graph that shows that all the efforts by the teachers, they help the students to clear the competitive exams, and this graph is increasing. This is the student progression. So this, Fatima ma'am, the IQAC coordinator, she will be explaining it. I don't want a repetition. Why it is just 30, so she will explain it in her presentation. So now we come to co-curricular and extracurricular activities. As I had just previously mentioned, that NCC was initiated this year only, and they are just going with their training programs. They have not done any activity as of now. Next. Okay, the Rover Ranger is doing a remarkable job. They are there for the extension activities, and a very proud thing that I would like to mention is this year the Rover Rangers and the American Girl Scout of New York, we had a kind of, it's not a signed memorandum or something, but we started online interactions. So though the girls from the Girl Scout New York, Western New York, and our girls, we interacted. These are the pictures, and you can see the video also later if you have time. And these are the camps that they do here in the college. Next. Actually, all the activities in the college, they are done to make them more confident. So once they interacted with the American girls, they were so excited, and that really helped them. So the NSS, our NSS team is a very active body, and during COVID, they have done a remarkable job. So the NSS coordinator, she will be telling you all the details what they have done. Next. So this is alumni engagement. So we have got few alumni who are in the university, in the colleges, and we have got principals also in school. Some have retired, some right now also they are working as principal, and you will be able to interact with them during the session with the alumni. The financial management, so we have got internal and external audits every year, and the data is here, and you can verify it in the office later on. So now I would like to focus on all the milestones that we have achieved and all the initiatives in the last 1 year, because I am the best person to talk what we have done recently, not what we have done earlier. That thing IQAC coordinator will be covering. So our college can boast being the first to introduce and develop the curriculum of 10 skill development courses. Our college was the first one in the university. Every other college, they have taken our syllabus, and these were the 10 colleges, 10 courses that were started. You can see in the media also it is written, NEP में जहाँ कॉलेज स्किल कोर्स को लेकर सवाल करते रहे, वहीं कन्वर लाल कॉलेज पहले ही छात्राओं के लिए कोर्स लागू कर चुका है. So we are the first one who started, and we have not stopped here. This year we have introduced 4 more, because NEP says that we have to make our girls, our students, self-reliant. So just to go further, what we did is, we whatever things they made, we had an exhibition for them, and we bought things from them. All the things that were presented to you, they were made by our students also,
And in the first exhibition itself, 28,000? Yeah. They earned 28,000. So that boosted their morale also, so that they can use it further if they wanted an emergency, how to like run a business or something. Next. Then, our college, having started the Zero Waste to Landfill project on its campus, is the first college of UP to undertake a project of this kind. So, these are the dustbins that were distributed to each and every staff, from peons to principal. They were distributed, and the students were made aware of how to segregate the waste material. Our girls are doing very good in sports. The sports coordinator will give you the details. As of for now, I would like to tell you that last year, 2 of our girls, they were selected for national in tug of war, and university level, they always win silver or gold. The sports coordinator will give you the details. Next. So we come to Muskurayega India. This also proudly we can say that out of 10 coordinators, our coordinator was awarded there in UP, Lucknow. And out of 25 students, 2 of our students also were awarded there in Muskurayega India campaign. These are 2 MOUs that recently we signed. One is with Commerce Department and National New Delhi Institute of Management. Recently we signed it. And again, a proud thing is that the first skill University of India, we have an MOU with that university. Our student Rashi Jain, she participated in the National Youth Parliament. So she was selected like after 3 rounds. Initially, I think district level, then state level, and then they met all these people in the parliament also. Our cultural coordinator will give you all the details, but I would like to tell that whenever our students go to for any competition, they always win. They've gone for the Yuva Mahotsav, and every time they have reached the state. It is held at district level, then mandal, then zonal, and then state. So twice they have gone for the state. Next, these are the pictures of those Mahotsavs only. This girl, recently she qualified IAS mains, and she's preparing for the interview. So she is also motivated. She is in this college only. With these resources only, she comes from a very poor background, but still she was motivated, and that is why she just personally came and met me. Again, our college was appreciated for the work that we had done for SWEEP. This is our CDO, and our college and another school, we were the most active institutes who worked for the awareness for voting. Azadi Ka Amrit Mahotsav, as you know, we have to organize so many programs according to our government, and proudly we can say that we don't miss even a single event. Our classes go on regularly, and we are organizing all these events with full, in whatever way we can do in the best thing. Next. Okay. So when I joined here, one thing that was missing in this college was that no one was interested in research. So now everybody has been motivated, and in December last year, I joined in October end. This was a national seminar that was organized and sponsored by ICSR. So this is the national seminar, and recently the college, it has launched a special edition of a journal, and the impact factor is, I think, 8 point something. The research coordinator will tell you. Next. Now we come to the institutional strength. So we use ICT in teaching and working, and a very proud thing again that is about our college is that we have got our own app, Ag Nirvana app. So during COVID, when everywhere the teaching was affected, our students, they didn't have to worry about it, because all the lectures, everything was given by Ag Nirvana.
helps, like as I told you, girls come from very poor families. They cannot afford their commuting this thing. So what they do is, whenever they don't come to the college, they just make up from the Nirvana classes. We have got a good infrastructure, and we always focus on innovative practices. We are techno-savvy faculty, effective administration, we work as a team, then well-coordinated systematic organization. We have a campus that is environmentally aware of everything. And as I had mentioned, we are a pioneer in implementing NEP in Meerut, and it is a student-centric college. The weakness is limited exposure of faculty. Most of the faculty, they've just recently joined, and research we are lacking here, and no government grant has been availed. The management, they said that we don't need any grants from the government, so nobody applied for that also. Infrastructure, that is an obvious thing, because we are planning to have some more self-finance courses, so our infrastructure has been saturated. Next, institutional opportunities. We have adopted NEP 2020. So as I told you, we are pioneers in the skill development courses. So everywhere in the university, whenever they need anything, our college is like contacted. So these courses are approved by university? Yes. We design them, then we send it to the university, and it is approved in the Board of Studies. Yes. And after that, in the executive committee. Then after that only. They are a part of the syllabus. Yes, Give yes, credits for that. Yes, ma'am. Because we're so excited after the skill incubation. We don't have science. So the incubation center, as you know, everywhere it is being like promoted. So we are thinking, like it is in the process that we start a skill center in our college. So we get new ideas for the girls, and they can benefit from that. Then postgraduate courses in sociology, Sanskrit and music, they can be opened, because we have got a number of students who are so much interested in sociology for PG, and we don't have PG here. And with better counseling, students can crack various competitive exams. So in our future plans, we are thinking of giving them free extra classes for competitive exams. And yes, we do help the lower income group girls. The challenges, as you know, we have got so many classes on online platforms. So students, they think, why should we go to the college? That is a big challenge. And less enrollment in postgraduate classes. As I told you, majority of our PG courses, they are run in self-finance mode. So they don't have so much money so that they can take up the courses in PG. Majority of the students, they are from low income group. Are you self-financing? The fees is decided by you or by the university? The university has said, it is there. Okay, fee structure is there, but the management is also like it can edit it, according to their. They can do it. Yeah. But they cannot go ahead of that. But whatever the university prescribes, they go with the rules of that only. But the management does change the fee structure. The course, PG course. PG course is like 8,000. 8,000 to 10,000. 6,000 semester. Yes. Per semester. Yes. Various educational courses in a limited infrastructure in the days to come. So when you'll be visiting the departments, you will see that how we have made optimum use of so many rooms. Like when you go to the IQAC office, we have got 3 offices in one room only. The political science has proctoral board also in that department. So because of lack of rooms and all, we are managing this way. Next. So these are the new initiatives. As I said that our college is student centric. So everything that is being done here, it is for the students. These are the 7 S's that we started: Suswagatam, Samvad, Sudiksha, Sanidhya, Sanja Manch, Sutta Sahyog, and Sarvshret Upasthiti Sarhana. Next. Then zero waste to landfill, academic administrative audit,
student attendance record and official notices on WhatsApp. Consolidated monthly faculty leave record and book bank has been started, and integration of career counseling and placement. So this has been started last year, and this year also 2 years consecutively we have done this. The girls were welcomed by all the faculty. It is basically an induction program, but we interact with them in such a way that they feel comfortable with each and everything, and they know about all the resources, about all the committees of our college. In one day, they learn everything about our college. Second, this is a very successful program that we started. This is called as Samvad. In this, the principal interacted with the students, and the principal called each and every faculty in front of the students, and the principal discussed with them what the problems they were facing, and his teachers were also there, and majority of the problems they were solved there and then, and whatever problems they could be discussed at that time, they were solved in a few days. This is Sudiksha. So, Yes. students feel free to talk about Yes, their yes, problems. yes. And then the benefit of this program that was conducted last year was that now the students, I told them, आपको किसी से डरना नहीं है, आपकी जो भी problem है आप बताइए. So now the students are so free, all the problems and it was not because there is an unbiased culture here in this college that whatever they are saying, that the teachers are, you can see the teachers are also here. So if the student is saying something about they have some problem with the teacher, the teacher also cannot say that no, she is saying wrong, it's a false statement. Do you have complaint box in your? Yes, we do have. Initially, before that, we had a complaint box. They used to write there. Now directly, because they come with the problems here, and apart from that, they also come to the dean or they come direct to me also if they are facing any problem. So Sudiksha is a cultural program, and what makes it different from other colleges is that last year we just joined the exhibition with Sudiksha. So the Vice Chancellor and the Commissioner of Merit, they were invited, and this was a skill exhibition which I told you they earned 28,000 in this exhibition. Next, this is also a very successful program of our college, that is Sanidhya. Sanidhya is a parent-teachers meeting where all the parents they come and they talk freely about all the problems that their students are facing. And all the problems or the feedback was taken, and work was done on the feedback, whether it was negative or whether it was positive, and I made sure that everything was solved. Sanjha Manch is also a very good program. In this, the principal interacts with all the staff members, and the principal asks them for new ideas, because the principal cannot always have everything best in her mind. So the principal invited suggestions from the staff members, and in this meeting itself, we got so many suggestions. Like they said, what we can do is we can have a book bank, because I told you girls come from poor families. So all the students started a book bank. All the students of final year, they were requested to donate books. So in each and every department, we have started getting books. Then next, this is the Suta Sahyog. This is also a very, very good and very successful program that we started. Actually, as I told you, we have got very girls from poor families, and when I joined, I saw girls crying because they didn't have fees, and I paid for I think 8-9 students, and similarly many teachers were paying for their fees. So what we suggested is, why don't we start a fund of our own, like all faculty members, and nobody was pressurized. Even if someone wanted to give 100 rupees, it was there. If someone wanted to give more than that, and just show the next. So you will be very happy to know that we collected 46,000 rupees, and out of that 15 students, they were given 33,000 rupees, and still we have got some cash. So the students were also, it was a remarkable outcome of the program.
So you give to needy only or Need. And then or you see needy. their performance also? Yes, ma'am, for that what wanted applications, and then we see that the girl comes to the college, she's Yeah. regular in the classes, and all the teacher has to give her a mark, and then we have set up a committee, the dean and all the senior teachers. So this is apart from their government. No, this is our personal. We have donated voluntarily for this. This is nothing to do with the government. This we have already discussed. Next. So it's the first time that we had a camp. The Dean Student Welfare from the university had come. Next. This is also a very nice thing that we have started. The faculty have been asked to record the attendance in a WhatsApp group. Every day they have to give how many students were present, so that the principal can monitor whether the classes are going regularly or not. Instead of going and checking the registers, every day in the evening the principal can see how many students, and if the number of students is less, then there is a meeting held and with the heads, and then the problem is asked why the students are not coming. So this is also a good thing. Or to save paper, what we have done is all the official notices, they are also given in a WhatsApp group. Next. We have started a consolidated monthly faculty leave record. This has been started just so that everybody knows, because like leave is there, right? But and their responsibility also, instead of going for leaves again and again. So everyone at the end of the month, they see how many leaves they have taken. Next. This is the book bank that I just discussed. Next. We did have a placement cell. So this year, especially, we have got commerce students. So we have integrated the career counseling with the placement, and in February we will be inviting the companies for the commerce students. This is the first time that we are going to do it. These are the best practices. We have got class tests and half yearly. This I think we mentioned in the SSR. Then Sarthak is the best practice for redefining this IQAC coordinated. She'll explain. We have got solar panels all over. Then these are the 7 S's that I've told you. Then inclusive atmosphere, and mentor-mentee program is also a very successful thing in our college. Next, this is the ad nirvana that I just mentioned. So, and this is some pictures of the mentor-mentee program. What you do in this? Like what we have done is the students. So those students, they are responsible for all the problems, personal, anything. On regular basis, they interact with them, and then because we have got a very good psychology department, most of the girls, they have psychological problems. So they just go for the counseling of those students. Every Wednesday we have got a doctor comes to visit, because mainly they have iron deficiency and all those, and because they come from poor families, so they are given medicines also in free. We had a vaccination, COVID vaccination camp, etc. These are the future plans. As I had mentioned earlier, we are planning to have an idea incubation center, which in your near future we will be doing it. Then minor courses also, I would like to tell you that initially we had 2 minor courses, and this year we have got 13 minor courses. 13, right? Because What is the duration of that? in one semester you can minor semester. So you give certificate or something to them? It is a part of the syllabus. Part of the Yes. Like NEP says that the students can learn other subjects also. So that No, is but you have some prescribed hours for that. Pardon me? Prescribed hours for that. You said 1 semester. Yeah, it is in the timetable. It is in the timetable. She's the timetable. It is part of the time. Yes, ma'am. Yeah. Either 4 periods in a week, 5 periods in a week, or 6 periods in a week. That is up to the institution. Okay. So because we have followed NEP like anything, 13 courses, minor courses. This is a remarkable thing that we are doing. Then long-term research. Our main focus is going to be this only. And in near future, each faculty has been motivated to get grants from ICCR and UGC. Future roadmaps, we don't have toilets for Divyanjan, grants to be availed, more publications, everybody has been motivated for that.
And reskilling in computers. Suppose they know Excel, they can go for further advanced courses. We didn't have a green audit as of now, so we have initiated the process. And I told you that we had an academic audit recently. Now we'll be doing it annually. We don't have an IGNOU center or Rajshri because we have got this infrastructure. We can use it that way also. And this is something very important. Sociology and Sanskrit. There are so many students who want to be in our college and we don't have PG here. NET classes in commerce. Placement we have started already. Then increase in the number of toilets, and we don't have drinking water on all the floors. So we are working upon it also. This is the print media. We will show you the file also. These are just a few of them. And this is the presence on, we've got a page on Facebook, Insta, Twitter, everywhere we have our page. And we work as a team, and you can see in the picture, from the peon to the senior most teachers, we work as a family. So this is the USP of our college. Thank you. Any questions? फर्स्ट ईयर में बीकॉम में है और 50 सीट्स इन पीजी में है। पीजी में कितने? 50। सारा फुल है? मैम बीकॉम फर्स्ट ईयर में एट प्रेजेंट 94 एडमिशन्स हैं। ओके 2 सेक्शन है ए और बी। ओके। पीजी में? पीजी में 25 स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंट अचीवर्स इन स्पोर्ट्स एंड एट प्रेजेंट आरती कसाना यूनिवर्सिटी लेवल पे। एक्स्ट्रा कोर्स भी कंपटीशन इन शोभित यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्राइज जीता था। इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में सेकंड प्राइज। एक्टिविटी अटेंडेंस। Do you have that mechanism to find out कि वो कहाँ बैठे? मैम कुछ तो MBA वगैरह में एडमिशन्स ले लेते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं। Okay. Are they in touch with the college or they disappear? नहीं On that mechanism we started this year. Okay. Earlier we didn't have a mechanism of such, but this year we have started. So the clerk who deals with the issuing TCs and transfer certificates, when he lets the children fill the form, so what he does is he includes another line कि अभी आप आगे चलकर क्या करोगे या कहाँ एडमिशन लेने जा रहे हो, तो उसका फिर वो पूरे साल का रिकॉर्ड हम उसको मेंटेन अप करते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पर 2018 में स्टार्ट हुआ है। ये नया कोर्स है और ये डॉक्टर राखी जैनी एसोसिएट प्रोफेसर लाइब्रेरी। हेलो। सिलेबस एंड पीपी इंक्लूडिंग It is B.Lib. BA। BA. यस BA in मैम library एक्चुअली में science. होता B.Lib है, लेकिन ये BA में इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। Okay. BA बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन चल ठीक साइंस। है। Okay. सेल्फ फाइनेंसिंग है या मैं इसको बताऊं? एडिट में है मैम? जी मैं हमारे यहाँ पे 80 सीट्स हैं। ये नेक्स्ट कर दीजिए। मीटिंग में हूँ यार, फंक्शन है ना। हमारे यहाँ 80 सीट्स हैं और 80 की 80 फुल हैं। और ये 2080 से मतलब 18 में स्टार्ट हुआ था, तब 60 थी, उसके बाद 80 सीट हुई, तो तब से ही ये सीट्स पूरी फुल चल रही हैं। So they take this subject with other subjects. It is one of the subjects in graduation. And they can do MLib directly after it? नो Are they qualified or नो not? मैम बी आफ्टर BA के बाद में BA है। Again They have B.Lib to करते do हैं? B.Lib, जी। Okay, sir. 1 year BA and 1 year MLib। Okay, so why do they take this course here? क्या करता है कोर्स, उनको कैसे हेल्प करता है if they have to do मैम again उनके B.Lib? लिए जैसे अभी कोई BA करके जाए, अगर पास आउट उनके पास में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नहीं है, तो उनके लिए B.Lib एकदम नया सब्जेक्ट लगता है और प्रोफेशनल कोर्स है, तो वो उन्हें समझ में भी नहीं आता है। तो उनसे जैसे हमारे यहाँ से कुछ बच्चे B.Lib कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें यहाँ पर पढ़ने के बाद में उन्हें वो B.Lib थोड़ा ईजी लग रहा है कोर्स करना। और जैसे बच्चे हमारे पास में पूछने आते थे कहीं से कर रहे होंगे B.Lib, तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग,
जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता जब तक हम उसे डीपली मतलब उस चीज़ को हम पहले से पढ़ लें तो बीलीव में थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो बीलीव में जाके बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ वही लगता है कि कैटलॉगिंग होती क्या है। एक्चुअली डीडीसी है तो डीडीसी भी बहुत मतलब समझ में नहीं आती ड्यूबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें से हम क्लासिफिकेशन नंबर देते हैं। So how many teachers are there to teach this? Only you are there? Yes. Are you PhD? यस मैम, मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन भी हूँ और ये सब्जेक्ट भी चला है। किस यूनिवर्सिटी से PhD? मैम CMJ यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। So along with other subjects ये library जी That's the new thing. So, 80 BA फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड थोड़ा चलो पहले next वाला। question। 63 एंड 55 सॉरी। ये 80 और 63 माने ये फेल हो गए, कहाँ चले गए? नहीं मैम, इन्होंने छोड़ दिया है, कॉलेज से ही छोड़ दिया है। ओके। फेल कोई नहीं हुआ है इसमें, रिजल्ट बहुत रिजल्ट का हो गया किसी भी रिजल्ट वाली कहाँ पर ये है मैम। BA फर्स्ट में हमारा 94 रहा है 18-19 में, और जी उसके बाद हमारा कोविड की वजह से प्रमोटेड हो गया और ये 92 रहा है BA थर्ड का और 90। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट जो आया है कि बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे इंटरेस्ट लेके पूरा 80% मतलब इसमें जितनी भी सीटें हमारी अपने आप ही फुल हो जाती हैं। उसमें हमें ये नहीं करना होता कि बच्चों को हम रिक्वेस्ट करें कि आप इस सब्जेक्ट को लीजिए। रिसर्च पेपर मैम हमारे दो चैप्टर हैं, बुक चैप्टर और जी प्लस हमारे जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर भी है आपके पास? एक्टिविटी आपने जो ये सिस्टम बताया अपनी लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी का हम आप ही से सुन लेते हैं जी बार बार हम नहीं वो करेंगे, वो आप विजिट करेंगे बस। हाँ तो ये लाइब्रेरी में आपका क्या उनको ऑनलाइन क्या अवेलेबल है? डू यू हैव दिस SMS सिस्टम लाइक किसी का ओवर आप ले गए फिर वापस नहीं करी, तो क्या सिस्टम है आपका? मैम एक्चुअली में हमारा ओवरड्यू तो उसमें पता चल ही जाता है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से, तो हम उनको कॉल करते हैं, कॉल कर ही उनको बुलाया जाता है। उनके पास रिमाइंडर नहीं है? रिमाइंडर बाय हमने मतलब उनका सबका लाइब्रेरी का तो नहीं बना हुआ है कि पूरे कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो उसमें हम भेजें कि इन बच्चों का है, लेकिन उनकी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा 15 डेज़ का होता है, 15 डेज़ हम इशू करते हैं बुक्स को, तो उसके बाद ओवरड्यू हो जाता है तो उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कितने बच्चों का। वैसे ज़्यादा होता नहीं है हमारा ओवरड्यू, लेकिन जैसे 4-5 बच्चों का है तो उनका जो है हम नेक्स्ट डे में एक रूटीन बना हुआ है कि हम उसमें उन्हें कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी बुक जो है ओवरड्यू हो गई है। और एलिस बोर्ड विंडोज़ है जिसमें हमें सारी मतलब इंफॉर्मेशन उनसे मिली जाती है कि कितनी बुक्स हैं हमारी या कितनी किस बच्चे के पास है, कौन सी है, किस टाइटल की है, किस मुझे आपके पास पुरानी यूनिवर्सिटी है रेयर बुक्स कलेक्शन भी इस तरह का नहीं? ठीक है। I am Dr. Kirti Agarwal, Department of Education, BEd, established in 2007 in Salpanes. Faculty members, myself, Dr. Kirti Agarwal, Mrs. Neetu Gupta, Ms. Ritu Sharma and Mrs. Seema Saini. ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है हमारे डिपार्टमेंट में। BEd दो उसमें है, BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ईयर में 4 कंपल्सरी और 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स एंड सेकेंड ईयर में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और सेकेंड ईयर में 4 मंथली इंटर्नशिप होती है 16 वीक्स, और उसमें स्टूडेंट्स को किसी भी 6 to 8 स्कूल में 6 to 8 तक के में 4 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली स्टूडेंट्स को उन्हीं स्कूल्स में प्लेसमेंट्स भी मिल जाता है, क्योंकि उनको इंटर्नशिप से काफ़ी बेनिफिट्स वहाँ मिलते हैं, सीखते भी हैं और एक अच्छा उनको वहाँ पे एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? मैम 49 स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंटली, और ये इंटर्नशिप का है हमारा। जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको फिर वहाँ से 4 मंथ्स का सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का। ये ऐसे हमारा वो है एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं सब। अभी BA BEd कंबाइंड डिग्री तो नहीं? नहीं मैम अभी नहीं हुई। यूनिवर्सिटी ने नहीं, नहीं?
टीचिंग मेथड्स हैं ये इसमें जो हमारे इसमें कंपलसरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि उसमें ICT का, स्काउट कैंप का और वर्क विद कम्युनिटी का, ये सब इनको एक के बच्चों को स्काउट में ज्वाइन करना पड़ता है। यस मैम, वो उनका पार्ट है, उनको फाइल भी बनानी होती है। किस पार्ट में? करिकुलम। और करिकुलम फाइल बनानी होती है पूरी। नेक्स्ट ये आर्ट एंड एस्थेटिक जी नो मैम, ये आर्ट एंड एस्थेटिक लोग कर रहे हैं टीचर मैम बनाने सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को और इसके लिए एक 1 वीक वर्कशॉप अरेंज की जाती है। इसमें बाहर से हम एक मैम बुलाते हैं, वो फिर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनके आर्टिकल्स ये मोस्ट प्रोबेबली हैंडमेड, मतलब सभी हैंडमेड हैं, कुछ वेस्ट ऑफ होते हैं, कुछ न्यू होते हैं, तो स्टूडेंट्स को एक अच्छा फील मिलता है कि वो इस तरीके से इनको आगे सेल उसमें भी लगा सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी अलग से मेंटेन की हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो इशू भी कराना चाहते हैं या फाइल वगैरह या असाइनमेंट बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो इशू करा सकते हैं सबसे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। इसमें यूपीटेट और सीटेट मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट रहा है, यूपीटेट सीटेट को पास किया है क्योंकि बीएड के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेजेंटली यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तो स्टूडेंट्स को एक अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। 2 दिन के लेक्चर से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलती है इस चीज़ की, क्योंकि बीएड के रेगुलर क्लासेस के साथ में कोचिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइमिंग नहीं होती इतनी, तो स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से। नेक्स्ट ये हमारा प्रोग्रेशन है, स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ बीएड के बाद में और भी कई उसमें पीजी के लिए लिया था एडमिशन्स। ये प्लेसमेंट हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे कि उन्होंने जहाँ इंटर्नशिप की है मोस्ट प्रोबेबली उनका वहीं पर प्लेसमेंट भी हुआ है, उन्हीं स्कूल्स में मोस्टली। अपने विभाग का परिचय देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। हमारे महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग 1969 से ही स्थापित हुआ है और तभी से यहाँ पे स्नातक की कक्षाएं संचालित हैं। यहाँ पे 2 स्थायी पदों पे नियुक्ति है हमारे विभाग में, जिसमें पूजा राय मेरा जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मूल्यांकन के तरीके बदल दिए हैं, तो उसके हिसाब से पहले जो एग्ज़ाम वर्ष में एक बार होता था, तो अब हमने अपने मूल्यांकन में इन चीज़ों को इंक्लूड किया है कि बच्चों का पूरा सर्वांगीण मूल्यांकन हो, जिसमें हमने यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज, डिबेट, क्लासरूम डिस्कशन, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम करते हैं छात्राओं का मूल्यांकन। और सीट्स 160 इतना फुल होगी जी। क्या लगता है आपको कि सोशियोलॉजी पढ़ के एम्प्लॉयमेंट का क्या है? मैम सोशियोलॉजी तो स्टार्टिंग से ही स्पेशली छात्राओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और एनईपी के बाद से इसके व्यवहारिक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि अभी तक एक थ्योरी के रूप में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकल भी 4th सेमेस्टर से ही डाल दिया है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, ताकि हम ये समझ पाएँ कि बस एक पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि हम एक लाइफ में इसको समाहित करने का विषय है। क्योंकि सिर्फ सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट ना हो के हमारी चारों तरफ है, हम एक समाज में रहते हैं, हर चीज़ में सोशियोलॉजी है, तो अगर हम उसे एक विषय के रूप में ना लेके एक अपने जीवन में अगर उतार ले, तो फिर जो भविष्य में जो समस्याएं आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमारा भविष्य में यही रहेगा उद्देश्य कि हम अपनी छात्राओं को इस तरीके से तैयार करें कि वो अपने जीवन में उस चीज़ को ले आएँ। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट आगे है भी, फ्यूचर में भी हमने डाला है कि हम सोशल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं, जैसे ओल्ड एज होम विजिट कराते हैं कि जो इशूज़ हैं समाज के उस पर हम डिबेट करें, और जो भी करंट ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर क्लास में डिस्कशन करते हैं कि उनकी क्या राय है। जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका आंसर उन्हीं से पूछते हैं कि इस विषय पे क्या करना चाहिए, कि वो कितना अवेयर है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक टॉपिक हम अपने के बारे में। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, और इसमें हम लोगों ने डस्टबिन भी डिस्ट्रीब्यूट कराए, अवेयरनेस का भी काम करते हैं। और नेक्स्ट ये हमारी और एनएसएस दोनों का ही प्रेजेंट कर रही है। नहीं मैम, असल में मैम वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कोलैबोरेटेड हो जाती हैं, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक फीलिंग है वो हर एक स्टूडेंट पे आना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा पूरा ही डिपार्टमेंट इस पर फोकस करता है कि हम स्टूडेंट्स के साथ उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हें आगे लाइफ में आगे लेकर के जाएंगी। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से ही स्टूडेंट थिएटर के लिए स्टूडेंट सेंट्रिक पर करता है, और हमारा जो स्टूडेंट्स और हमारे एल्यूमनाइज वो हमारा एसेट हैं। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड
हम जब भी हमें ज़रूरत होती है हमारे एलुमनाइज दे डिलीवर। हमारे एलुमनाइज स्पेशलाइजेशन क्या है साइकोलॉजी के पेपर्स में? साइकोलॉजी के पेपर में मैम मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एमए में आपने कुछ स्पेशलाइजेशन? एमए मैम मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस से किया था। जो मेरा स्पेशलाइजेशन था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोचिंग में था और डिसर्टेशन मेरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में थी। आपके इस कॉलेज में जो कोर्स चलता है ना, दैट इज पास कोर्स पेपर्स आर कंपल्सरी, but in fourth semester only clinical psychology is compulsory. Other 3 papers we choose from the 12 subjects. So we are teaching industrial psychology, developmental psychology and stress coping and management. okay. Fourth That semester. is optional. जी और electives you can. जी elective papers. 3 papers elective and 1 is compulsory. Industrial psychology first paper is clinical, that is compulsory. The other 3 papers from 12 subjects are industrial psychology, developmental psychology and stress management and coping. आप प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हो स्टूडेंट्स को? मैम वी ट्राई आवर बेस्ट और प्लेसमेंट के लिए क्योंकि अब साइकोलॉजी में काउंसलिंग स्किल्स रेपो एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है। पीजी में अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं था कि स्टूडेंट इंटर्नशिप करें, लेकिन हमने पिछले सेशन से स्टार्ट कर दिया है और हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट ने 1 महीने का जो है वो इंटर्नशिप किया है काउंसलिंग सेंटर में। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। शी हैज़ कंप्लीटेड अंडर न्यू एजुकेशन आप उनको अपना स्टार्ट काउंसलिंग सेंटर बेस्ट एंड इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ एनजीओज और जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं उनके साथ हमारा एनजीओ वी आर अंडर प्रोसेस दैट एंड राइट आफ्टर दैट वी विल गो फॉर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड। तो हमारे यहाँ की जो फैकल्टी हैं डॉक्टर ममता अग्रवाल, वो हमारे यहाँ की एलुमनाई भी रही है। शी इज 2002 गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो शी हैज़ पेड फुल फीस फॉर 2 स्टूडेंट्स और ऐसे हमारे यहाँ के सभी फैकल्टीज जो भी है एनी हाउ हम लोग जो मदद कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की करते हैं। वी आर 24 आवर्स अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स कि वो लोग उसको पढ़ाएं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के क्योंकि साइकोलॉजी का 100% कंटेंट इज इन इंग्लिश ऑन ईपीजी पाठशाला, लेकिन उसको हम उनको भी कराते हैं और स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि वो अच्छा कंटेंट जब काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है तो वो यूजफुल हो और लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है तो दे आर डूइंग दैट, दे आर स्टिल लर्निंग। का प्रोसेस जो है मेजर और माइनर दोनों में चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर में बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। थर्ड सेमेस्टर में दीज आर मास्टर्स कोर्स। पीएचडी आप क्या है करवा रहे हैं? यू आर द गाइड? नो मैम, आई एम नॉट द गाइड। करंट में मेरी पीएचडी चल रही है। हाँ, इट इज़ माई लास्ट ईयर। होपफुली जून तक मेरी सबमिट हो जाएगी। हम रिसर्च सेंटर है क्या? रिसर्च सेंटर है हमारे कोई फैकल्टी नहीं है, इस वजह से कोई पीएचडी कराना। एंड मैम दिस ईयर आवर सीट इज एडवर्टाइज, तो होपफुली विद इन 6 और 8 months द फैकल्टी विल बी अवेलेबल। डाइट में से 3 साल हो गए इनको। इन्होंने ज्वाइन किया था 2020 में। शेफाली है, ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है। इन्होंने हमारे यहाँ से यूजी किया था और ये अपना खुद का कोचिंग चलाते हैं और इनका अभी तक का सीटेट और यूपीटेट का 100% सिलेक्शन है। इनके साथ जो भी स्टूडेंट इनके साथ करता है वो ऑलमोस्ट उनका 100% है, तो कर रहे हैं। शी विल बी होपफुली ज्वाइनिंग आवर SWOT analysis. As I mentioned, our students are गायन, संगीत वादन, तबला और संगीत सितार की क्लासेस होती हैं। 1980 से ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश है। ये मेरे सहयोगी जो मैंने भी बताया, ऋषा सिंह, डॉक्टर अल्पना और राकेश परिहार सर हैं जो हमारे साथ कंपनी मैन के लिए उपलब्ध रहते हैं। चुके हैं जिसमें से 4 यूपी से लिस्टेड है। इसके साथ ही 9 एडिटेड बुक में चैप्टर हमारे पब्लिश हो चुके हैं। बहुत सारे सेमिनार में हमारे विभाग के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ पेपर भी इसमें से पब्लिश हुई हैं। लगभग 18 सेमिनार हमने की बोर्ड ऑफ स्टडी की एक मेंबर के रूप में हूँ। इसके लिए हमें CCS यूनिवर्सिटी ने NEP में कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया गया है। राकेश परिहार जी अकाउंटेंट है। ये हमारे यहाँ जो विभिन्न करेंट कोर्सेज चल रहे हैं UG में वो है सेम है। इस पर यूनिवर्सिटी ने 80 सीट्स कर दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा है। BA 3rd ईयर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट मटेरियल से, तो ये उसी का एक बच्चों का फोटोग्राफ है कि बच्चे किस तरह से बेस्ड मटेरियल से बना के लाते हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहें। ये और सारे हैं। संगीत परिषद का इनॉग्रेशन करते हैं। सुदीक्षा कार्यक्रम लास्ट ईयर हुआ था। ये नेशनल वेबिनार वाइज ने किया था। ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के कुछ इवेंट है। इसमें बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, नजीबाबाद हरियाणा, ऐसे बहुत सारे अदर्स प्रोफेसर्स ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है। BHU के भी है।
ये मैम लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन हमने कराया था, हम लगातार ही वेबिनार था। इसमें यूएसए से थे, कनाडा से एक्सपर्ट थे और नेपाल से भी एक्सपर्ट थे जिन्होंने प्रतिभागिता की और वो अभी भी हमारे विभाग के साथ जुड़े रहते हैं। ये मैम 7 डेज हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी ऑनलाइन। इसमें 14 स्पीकर ऑल इंडिया से थे जिन्होंने पर डे अपना अपना लेक्चर बच्चों को दिया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और अदर। ये ट्रेंड होगा या वो अपनी बीएड या कुछ करते हो? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया जैसे अच्छा अभी जो तो आपका क्या है, आपको सैलरी मिलती है या सेल्फ फाइनेंसिंग? नहीं मैम मैंने आयोग से अभी ज्वाइन आयोग से? ठीक है। कितने लोग हैं संस्कृत में? मैं अकेली हूँ। अच्छा आप अकेले? जी अकेले में आप 3 सेमेस्टर पढ़ा देते हैं? जी मैम। PG classes. Until now, we have published 6 research papers and we have attended 2 seminars, 2 international conferences, 2 workshops, and PG self financing since 1995. Now UG course was started in 1969 and PG has started from So it is self financed since 1995. आप लोगों ने PhD कहाँ से? वो तो फर्स्ट कौशिक फ्रॉम AKPG। मैडम इंग्लिश की And these are the faculty members of our department. As I told you. Next. PG में कितने स्टूडेंट्स से एडमिशन लिया? Now this year we have 13 students. 13 out of 60. कोई आता है आपका प्लेस यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट? हाँ जी मैम, बोर्ड में यूनिवर्सिटी भी है और 3 ने नेट किया हुआ है अभी 16 से अपने उसमें। और बाकी मैंने PhD करा रही हूँ, एक मेरे अंडर में अभी चल रही है और आगे 2-3 के मैंने मतलब उसके लिए साइन किए। आपका डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर का तो लमसम आइडिया है हमें कि उन्होंने करा। तो 16 जो आपका ये असेसमेंट पीरियड है इसमें कितने PhD अवार्ड पे आपने यहाँ से? 16 से 5 साल में कितने आपके साथ कोई अवार्ड नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च कमेटी में हूँ भी हूँ। तो इस बार इस साल अभी जनवरी में हमने उसमें जनवरी में 26 जनवरी को शोध मंथन एक शोध पत्रिका निकाली थी और आगे हम प्रयास करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। एक लेक्चर भी कराया था हमने कॉलेज के लिए। जो भी PG का बच्चा आएगा वो इसमें अपने कुछ खोज सकता है। ओके। हमारे पास UG का डेटा 78 से था, अदरवाइज ये पूरी वॉल 78 के स्टूडेंट से भरी है। ओके। That is that। सो लगभग कितने बच्चे हैं? ये मैम हर साल में अलग अलग थे, कभी 23 ने ये बनाया था और ये 2018 से हमने इसको किया हुआ है। 2018 हमारा 50वां साल था कॉलेज का, तो गोल्डन उसके में हमने कराए थे और इसमें इस कॉलेज की जब फाउंडेशन रखी गई थी तब से लेकर जिस दिन तक ये बना है उस दिन तक की मेमोरीज हमने कराने का कोशिश किया है। ये हमारा ये हमारा मैडम record ने book है। साइकोलॉजी की क्या? ये मैम हम लोग की सब्जेक्ट फाइल्स हैं। तो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जी मैम, जो भी हम लिंक्स वगैरह यूज करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट राइट सभी पेपर्स में मैम। वाइज। और ये क्या है? ये मैम हमारा रजिस्टर होता है जो हम लोग इंटरनल मार्क्स वगैरह के मेंटेन करते हैं। और ये हमारी जैसे डोनेटेड बुक्स है, हमारे स्टूडेंट ने RT का मैनुअल डोनेट किया, जिसने वो अपना PG डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो वो अपनी बुक्स डोनेट कर देते हैं। आपका काउंसलिंग सेंटर में है? काउंसलिंग सेंटर मैम हम लोग जी मैम, हाँ ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट। दिस इज भाटिया बैठी, दिस इज द परफॉर्मेंस एंड फॉर UG एंड और मैम UG PG में हमारे इधर मेरठ में हम लोग कराते हैं और सभी लोग PG में भाटिया बैठी कराते हैं जी। और इसी तरह से बेंडर गेस्ट चार्ज का रिवाइज वर्जन कोई नहीं कराता, वो हम लोग और फर्स्ट ईयर की मैम क्योंकि थर्ड से अभी हमारे सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुए हैं, आए हैं वो लोग भी आते हैं क्योंकि उनको क्वेरी सॉल्यूशन चल रहा है। आपको सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर्ड, आज उनका अपना TAT का प्रैक्टिस कर रही हैं और उसमें जी। और मैम हमारी स्टूडेंट जो एलुमनाई है, जो हमने कहा था एलुमनाई कंट्रीब्यूशन की बात जो है, तो हमारी स्टूडेंट प्रीति राणा PhD कर रही है। उन्होंने क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग कराई थी तो हमने वर्कशॉप करवाई थी क्लिनिकल साइकोलॉजी। कोशिश करते हैं कि उसी कोर्स को जी मैम हमने जब पढ़ा था तो हमारे यहाँ प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फैकल्टी थी, तो इन्होंने उनसे सीखा
ठीक है, ये कार्ड लेकर के आप स्कोर एंड मैम एक्चुअली पहले इनको स्टोरी लिखवाई जा रही है, उसके बाद हमको कैसे एनालाइज करना है वो बाद में, फिर हमारा रिजल्ट थोड़ा इफेक्ट करेगा। वेरी गुड, यू कैन जस्ट एडमिनिस्टर ऑन द स्टूडेंट्स अदर देन साइकोलॉजी पार्ट। जी जी मैम, हम लोग उसमें भी कोशिश करते हैं। और मैम इनकी आरटीसी है अभी 10 नहीं, साइकोलॉजी के लोगों के लिए स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना इज ऑब्जर्वेशन तो बहुत जरूरी है। और उनके पास ही रहते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं। अभी फोन आया है, मैं आपके पास मीटिंग में थी अभी मेरठ में ही नहीं। मैम प्लीज हमारा वर्क देख लीजिए, हम दिखाना चाहेंगे। हम लोग एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी करते हैं, ये हमारा सारा पब्लिकेशन सबका ये पब्लिकेशन है। एक्चुअली हमारी जो फैकल्टीज हैं वो सेल्फ फाइनेंस में है, उनका अभी वर्क नहीं है। ये हम लोगों का है, मेरा डॉक्टर विनीता गुप्ता वीडियो में मैं पॉइंट ऑफ व्यू कर पाई थी। गवर्नमेंट उसमें बच्चे रितेश कुमार बच्चे गए थे, तो उसमें सारा ये प्रोसेस रहा है, इसका सारा प्रूफ है हमारे पास, रिकॉर्ड्स हैं जो बच्चे हमारे गए वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया। इसकी सारी पिक्स हैं हमारे पास। हुंडा गाँव लगता है यहाँ पर पास से, थोड़ा डिस्टेंस है, नियर अबाउट 15 किलोमीटर। नॉट अडॉप्टेड, वी हैव जस्ट विजिटेड या फॉर द सेक ऑफ वोटिंग एरियर में उनको वो करने के लिए। और एक हमारे बच्चों ने मैं भी रिक्वेस्ट सर कि आप कमेटीज भी कर ओके, तो प्रोक्टर बोर्ड में चीफ डॉक्टर हूँ। ये हमारा सारा रिकॉर्ड है जिसमें हम मीटिंग्स करते हैं मिनट्स का। ये हम इस तरह से फाइल प्रोसेस में पूरा मेंटेन करते हैं, जिसमें हमारा ये सारा बच्चों का जो भी एक्टिविटीज़ हमारे स्टूडेंट्स की रहती है उसको हम करते हैं। जिसमें पॉलीथीन्स को रोकने के लिए हमने कराया, उसमें बच्चों ने किया है, बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव लिया है। इसी तरह से प्रोक्टर बोर्ड के अंतर्गत मैम उसमें जैसे एक तो नुक्कड़ नाटिका की थी बच्चों ने, उसका रिकॉर्ड है इसमें, और उसी के आधार पे बच्चों ने इवन कपड़े के बैग्स बना करके वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, जिससे पॉलीथीन्स को नहीं मैम, एक्चुअली टाइम टू टाइम अलग अलग कमेटी उसको हैंडल कर रही है, लेकिन हम इसको रेगुलर फीचर में ला रहे हैं क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स में इनको भी एक एस्पेक्ट बनाया जा सकता है। यस मैम, वो डिसिप्लिन की ये हम बच्चों को काउंसलिंग मेथड से समझाते हैं, उसके आधार पे हम बच्चों को सॉल्व करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको डांटे या पनिश करें, वो प्रोसीजर नहीं अपनाते। ये सारा हमारा काउंसलिंग है जिसमें हम बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं। इसमें हमारे फ़र्क ये है कि लास्ट ईयर जो हमने 3 फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम बच्चों के लिए एक तो ये हो गया कि बच्चे ने कोई गलती करी, उसका समझा दिया, उससे एक एपोलोजाइज लेटर ले लिया, फॉर्मेट बना रखा है, बच्चा उसका जरूरत ही ना पड़े उसको भरने की। इसी तरह से जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, अचानक कॉलेज में आके हो गया, तो उसके लिए हम परमिशन लेटर उसका हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई सर्वे वर्क है जिसमें हमने सर्वे किया और हमारे टॉपिक ये रहा, हमने एक ब्लॉक चुना था रोहटा ब्लॉक, जिसमें हमने टॉपिक बनाया कि रोहटा ब्लॉक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या व पर्यावरण पर इसका प्रभाव। इसके लिए हम इसकी जांच या शोध करने के लिए हमने परिकल्पनाएं निर्मित की। हाइपोथेसिस, फर्स्ट हमारी हाइपोथेसिस की ठोस अपशिष्ट को लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करके हम किस तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। सेकंड इज 3 बीन सिस्टम को अपनाकर पृथक्करण की नीति नहीं अपनाई जा रही है, ये हमारी हाइपोथेसिस थी। फिर इसकी कुछ फाइंडिंग्स निकली, जिसमें कि पहली फाइंडिंग है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुछ नियम बने हैं या नहीं बने हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि नियम है या नहीं है, लेकिन जब हमने शोध किया, उन्हें बताया, तो उनका मानना है कि हमें इससे बहुत जानकारी नहीं है कि आप लोग आए और हमसे पूछा, इंटरेक्शन किया। सेकेंड इज कि उनके गली मोहल्ले में वेस्ट कंटेनर की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो सेग्रीगेशन जो करते हैं वो उनका सेग्रीगेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मिक्स हो जा रहा है। तो इसमें मिक्स ना हो, इसके लिए भी हमने उन्हें अवेयर किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमने उन्हें अवेयर किया। और वो कहते हैं इस बात को कि इस तरह के जो शोध कार्य हैं वो कॉलेजों के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू होते जाते हैं। ये हमारा डाटा है कंप्लीट सर्वे। ये हमारी फाइनल टाइपिंग की फाइल रिपोर्ट है। मैम एक क्या लगा कि जो हाउस वाइफ हैं
उनको they are not aware about it. मैम अवेयर तो नहीं है कि कोई मतलब जानकर तो अच्छा लगा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है जैसे कि उनको स्टडी जानकारी नहीं है कि सेकंड में क्लिनिक पे तो जो आते हैं वो किसी काम के लिए होते हैं। हमारा सजेशन ये है कि नेक्स्ट टाइम हम सर को उनको बताएं उस चीज़ के बारे में कि आप किस तरह से आपने क्या अच्छा राइट टू इन्फॉर्मेशन तो किसके बीच किया आपने सर? हमने जानी नहीं, आपके जो टारगेट ग्रुप था वो हाउस वाइफ थी या बच्चे थे या क्या थे? हमने मतलब सबको मतलब सबको लिया ये मतलब बच्चे भी अवेयर हैं या बड़े या फिर बेटा एज वाइज सेग्रीगेट तो क्या लगा? आर दे अवेयर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन? हमने वो जो अपनी मैम ये मुझे जाने थोड़ा सा डिटेल्स बचा है। हाँ मैम ये पूछना चाह रही है बेटा कि जब आपने सर्वे किया वहाँ पर तो सर्वे करते वक्त आप अलग अलग घरों में गए बात की तो उन्होंने क्या फील किया वो बताओ मैम को क्योंकि आप खुद गए हो। जैसा हमने सर्वे किया तो हमने ज़्यादातर देखा कि ज़्यादातर लोग इसको लेके अवेयर नहीं हैं, वो इस बारे में नहीं जानते कि हमें किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से या कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें इस बारे में नहीं पता है क्या है सर्वे। अच्छा लगा कि आप उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हमें ये अधिकार है कि तुम आए और हमें बताया कि उसके लिए बहुत अच्छा कि आपने हमें बताया तो हम अवेयर हो रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे। मैम इसी तरह से 6 टॉपिक्स पे काम कराया यहाँ पर हम बहुत सारे तो डिस्प्ले नहीं कर पाए और शी इज गाइडिंग चार्ट वाइज आपकी ISO लेवल प्रोसेस ओके लैब है आपकी वो वाली और लैब की ज़रूरत है आपको जैसे कि अभी बच्चे टेक्सटाइल ह्यूमन डेवलपमेंट what anything else you want to share with us other than what you have already shared something specific? मैम हमने जैसे शॉर्ट में बता ही दिया था आप थियरी किस वाले ईयर में पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी को? अभी तो मैम तीनों में थ्योरी ही है कुछ प्रैक्टिकल में क्या है ना कि ऑप्शनल होनी चाहिए यूनिवर्सिटी आपके थियरिस्ट हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं यूजी है पीजी की डिमांड है कि नहीं? मैम बहुत ज़्यादा है बोला भी है हमने बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का बहुत तो हमने बोला हुआ है हमसे प्रोसेस में नहीं आपको यदि डिमांड करनी है तो आप क्या उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे जिससे कि यूनिवर्सिटी यहाँ एक्सेप्ट कर ले तो क्योंकि मैम एनईपी में सोशियोलॉजी के जो व्यवहारिक पक्ष पे बहुत जोर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर से प्रैक्टिकल लाके तो हम इस चीज़ को ही हाईलाइट करेंगे कि हम क्योंकि सोशल वर्क पे आजकल जोर दिया जा रहा है आपके इस कॉलेज में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपके सोशियोलॉजी के पीजी होने में उसके बाद उसमें प्रोफाइल खुल के आती है तो हम अपना नाम या वो अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी उस पर डालेंगे जो रजिस्टर्ड है हमारा नीचे तो फिर हमारे पे OTP आता है यही सेम प्रोसेस स्टूडेंट के लिए वो एडवाना लॉगिन करेंगे और जो नंबर उन्होंने दिया है एडमिशन के टाइम पर जो रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP आता है तो फिर वहाँ से लॉगिन करने के बाद ये प्रोफाइल खुल के आती है तो ऐसे यहाँ पे जाएंगे हम ये हमारे जो ये पेपर्स हम पढ़ा रहे हैं वो है और इसमें टीचर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जी मैम और इसमें इंस्ट्रक्टर के तौर पे नीचे से मतलब जहाँ से हम अपडेट करवाते हैं वहाँ पे टीचर अपने कौन सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो वहाँ से अपडेट हो जाता है। ये तो कॉलेज वेबसाइट में भी होगा सर आपके पास उनके लाइव लेक्चर भी होते हैं
नहीं, उतना बड़ा इस पे सिस्टम है नहीं हम लोग वो कंटेंट अपलोड करते हैं, टेस्ट वगैरह अपलोड कर देते हैं। अदरवाइज मैम हमारे हर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और अगर कोई ऐसी क्लास है तो हम लोग गूगल मीट के साथ आपका स्टाफ रूम या आपने पेंटिंग बनवाई है। ICT का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वगैरह भी टेस्ट वगैरह हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो उसका पूरा हम लोगों ने रिकॉर्ड्स बताइए एक्सेल शीट में। अभी जस्ट बच्चों का हुआ है 11:30 बजे बच्चों ने किया है, काफ़ी हम ICT का मैक्सिमम यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? मैम पेंटिंग के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, जैसे हम लोग का टेस्ट भी है। इसके अलावा हम यूट्यूब पर हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जूम पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उससे लेक्चर्स वगैरह करते हैं, मतलब जो भी हम कर सकते हैं वो भी कंप्लीट यूज करते हैं। और हम लोग जैसे हमारा ऑफिशियल वर्क होता है ना, वो भी हम करते हैं, बच्चे अपने असाइनमेंट देते हैं, वो भी हम लोग को मेल करते हैं। मैम ये हम सबके जर्नल्स हैं, और ये तो लेटेस्ट है, एंड मैम ये 2016 से पहले के हैं, ये सारे 16 के बाद के हैं। इस सब में आपके पेपर्स हैं। ये मेरे हैं, इसके लिए कुछ आज दिखाने के लिए कि हाँ किस टाइप से वहाँ पर चित्रकला का क्या था, ये पेंटिंग ये हमारे जो म्यूजियम से लेकर आए, जो वहाँ से जो खुदाई में निकले थे, आप क्या हिस्ट्री डिपार्टमेंट है? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ है, अभी डिपार्टमेंट है। उनको तो प्रोफेशनलिज्म की तरह उनको करने के लिए, क्योंकि सबको जॉब भी कई बार नहीं मिलती है, और कुछ सम स्टूडेंट्स आर सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसका हर तरीके से। नैतिक की जो मॉरल वैल्यूज है वो भी डेवलप होने चाहिए और उसकी नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने यहाँ पे दिखाने ये मैम के द्वारा बनाई गई मैंने हार्ड लाइट पेंटिंग है। तो मैम ये है कि शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर और उसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पर्टिकुलर यूपी का सार्जियल चौमिना है, आप उसको नहीं वो अभी नहीं हुआ, बट हम लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं ना, जो बच्चों को पेंटिंग कराते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम लोग का प्रैक्टिकल का होता है। हाँ, क्योंकि ना बीच में सेंटर में मॉडल रख के उसको ना डिफरेंट साइड से हमारे डिज़ाइन के बच्चे सेकेंड ईयर में कम है पिछले साल कम लास्ट में इस साल 86 एवरी ईयर स्टूडेंट्स 5 आर्टिकल्स बनाते हैं इसमें आर्ट एंड एस्थेटिक की 1 वीक की वर्कशॉप में। और फिर हमारी प्रिंसिपल मैम ने इसमें ये भी शुरू किया इसकी वजह से कि एक इनका सेल काउंटर भी लगाते हैं। तो हम लेंगे एक बार
तो इससे स्टूडेंट्स का मतलब बहुत वो चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हेलो और कुछ स्टूडेंट्स तो अपने 5 के अलावा फिर और आर्टिकल भी बनाते हैं उसमें अपने, और उनका अच्छा स्किल है। मैंने फंक्शन में हूँ अभी। अब ये भी पूरे बच्चे जी। और क्या आपका एडिशन इंचार्ज में ही है? ओके एनकोडर बनवाया अभी बच्चों ने अपने ये सब्जेक्ट है। हाँ जी या मैं ये सिलेबस है जो 2019 में अपडेट होगा। अच्छा हाँ जी माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं। माइक्रो में हर सेमेस्टर 6 मंथ पे होता है, तो माइक्रो है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्वांटिटेटिव है रिसर्च। अभी भी यूनिट टेस्ट ये हमारे इंटरनल एग्जाम्स एमए लेवल पे भी होता है हाँ जी और हिंदी में भी अलाउड है। लिस्ट ऑफ कमिटीज आप अपने कॉलेज की हाँ जी अभी मैम बच्चों का एक बार हमारा जो विद्यालय का शुभारंभ सत्र हुआ मैम वो हवन के माध्यम से हुआ। और कोई भी कार्यक्रम का शुरुआत होता है तो वेद के मंत्रों के साथ में ही किसी भी कार्यक्रम का यहाँ से शुरुआत तो की। आप संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो अभी बच्चों में? कैसे मतलब कैसे प्लान करते हो? जी मैं मुझे हर बच्चे को संस्कृत का इतना शौक नहीं, तो एडमिशन कहाँ है उसके लिए कैसे? कुछ ऐसा आप स्पोकन में भी करते हैं कि वो बोले बात करें? जी मैम फ्यूचर में हमने प्लान भी किया हुआ है कि बच्चों को इसके जैसे कि गेस्ट लेक्चर के रूप में सेमिनार आयोजित कराएं। डे टू डे में बात करें, इसके लिए तो आप ही कर सकते हो। वो सेमिनार वो तो आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। हाँ मैम उसको जैसे हम इंटेक कितना है? हमारा प्रथम वर्ष में 37 है और सेकंड में 69 है। उसको बढ़ाने के लिए मैं पूछ रही आप क्या करते हो? जी मैम उसमें हम जैसे संस्कृत के प्रति उनका रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो कैसे बढ़ाते हो? वो मैम उनको जैसे उसका महत्व हम समझा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि संस्कृत में जैसे हम बहुत आगे नहीं जा सकते, तो हम उनको समझा रहे हैं कि संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है और नासा के वैज्ञानिकों ने आप उनको डे टू डे के लिए जैसे वो आते हैं डिपार्टमेंट में, जी जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन संस्कृत जी मैम उनको उनके आंसर संस्कृत में देने के लिए। और जैसे आपने चार्ट लगाए हुए हैं, जैसे आपने लिखा है भारत अनादिकाल से बोलचाल की भाषा है। जी मैम। तो अभी सरकार का क्या है, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी को MHRD ने एक संस्कृत का असिस्टेंट प्रोफेसर दिया विद अ सर्टिफिकेट कोर्स। जी मैम। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत नहीं है, लेकिन एक टीचर दिया है जिसकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है और वो संस्कृत का सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। जी मैम। तो उनका मेन काम क्या है, उनके पास क्यों बच्चे आ रहे हैं, जो मैंने देखा अभी उनके एक कार्यक्रम में, कि वो उन्हें संस्कृत सिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे बात उस सर्टिफिकेट कोर्स में। संस्कृत क्या थी वो हिस्ट्री में वो जा ही नहीं रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ अंदर आओ, ये बोलना है तो संस्कृत में कैसे बोलोगे। तो उसका असर ये हुआ कि फिजिक्स के बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने टॉपर्स को कुछ एक प्रोग्राम करा, उसमें कहा कि आपने सर्टिफिकेट देने, तो मैं गई थी। तो फिजिक्स के ज्यादा बच्चे संस्कृत सीखने के लिए, तो ये जो आपने दो चीजें लिखी हैं, ये एक वैज्ञानिक भाषा है जो आप बोल रहे हैं, और ये एक बोलचाल की भाषा है। तो मैंने पूछा भी कि मतलब साइंस के बच्चे संस्कृत कैसे ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साइंस के बच्चे ही सबसे अच्छा कर सकते हैं संस्कृत। तो फिजिक्स और मैथ्स वाले टॉपर थे उसमें। तो मैम हम उनको, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, बजाय थियरी के उनको छोटे छोटे। जी मैम हम उनको शुरू किया है, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया भी, तो बिल्कुल हम जैसे शुरू में हम उनको ऐसे ही वार्तालाप करके छोटे छोटे वार्तालाप सिखाइए। मतलब आपको तो लिटरेचर भी पढ़ाना है, जी मैम, आपको तो पूरा ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आपकी जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाली समय में दे शुड लर्न। जैसे इंग्लिश है ना, जी मैम, कि आप बोलेंगे नहीं तो आप उनकी क्या कहानी पढ़ रहे हो उनको समझ में नहीं। बिल्कुल मैम हम वो उनको सिखाते हैं। जो पब्लिक स्कूलों का धंधा है वो इसीलिए चल पड़ा कि वो बोलना सिखा देते हैं, बाकी वो क्या करते हैं, कोई नॉलेज थोड़ी होता है। मैम वो हम आप सोचेंगे नॉलेज हो रहा है, नॉलेज सिखा रहे हैं और उनको हमारा एक और करती हमारी ठीक है। तो सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। लिटरेचर का कम है।
मैम CCSU के जितने भी वो है ना लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, उसमें हमारे यहाँ हिंदी का कलेक्शन सबसे बढ़िया है और सबसे पुराना है। इसको ना आप फाइंड आउट करो। एक साल पुराना पाएंगे तो बहुत बढ़िया। इसमें एफर्ट लगता है ना, लेकिन आप करते हो तो वही मैं कह रही हूँ, इन चीज़ों को हाईलाइट। देखिए पेपर जो आपने फाइल्स बनाई हुई है ना, आपने तो ठीक बनाई हुई है, लेकिन किसी भी कॉलेज में आप जाते हो तो वो फाइल ही बना पाते हैं, और क्या बनाएगा। बट ये चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि आप इस काम को ऑलरेडी कर रहे हो, नैक के लिए नहीं कर रहे मैम। हाँ, है ना। जैसे वो कह रहे हैं कि 1 साल पुराना भी निकाल देंगे, तो वो ही इज़ डूइंग दैट। तो वो चीज़ें दिखानी है टीम कि ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है। कोई आर्काइव बनाना है कि ये बताओ कि कितने साल का आपके पास रिकॉर्ड है, उसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो कि न्यूज़पेपर से आप अपना PPT बनाइए। तो वो क्या करेंगे, पुरानी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास कब तक का रहता है रिकॉर्ड? मेरे पास तो फिलहाल इस समय 7-8 महीने पुराना है रिकॉर्ड। आप मांगेंगे अभी दे दूँ 7-8 महीने है। तो जैसे आप बिफोर आप इसको वेव ऑफ करते होंगे, फिर तो ये बच्चे अपने तो एक्सेशन में करेंगे ओल्ड बुक्स स्क्रैप करते हैं मैम, उसका भी ये कौन डिसाइड करता है? ये मैम हमारा यहाँ से पहले टीचर्स के साथ होता है। प्रोसेस क्या है टीचर्स डिपार्टमेंट? पहले हम यहाँ पर सारा स्कैन कर लेते हैं पूरा, जिस तरह से हम पूरी स्टॉक लिस्ट। टेकिंग का बोलता है 5 years। 5 years। जी मैम, जो 20 एक्चुअली में मैम जहाँ पे 20,000 होता है बच्चों का जो हमारा कलेक्शन है, बुक कलेक्शन 20,000 है, तो वहाँ पर ईयरली होता है। अगर 20,000 से ऊपर है तो वहाँ पर हम 5 years में कर लेते हैं। जी मैम, नहीं मैम, ये रूल्स है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है कि 20,000 है तो आपको ईयरली करना है। अगर 20,000 से आपका ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। जी मैम, हाँ 33,000 तो हमारा 5 years में होता है। तो हम इस तरह से मैम ये लिस्ट बहुत अच्छा है। ये टीचर्स से लिस्ट, मतलब हम लिस्ट बनाते हैं, फिर टीचर से साइन कराते हैं कि ये बुक्स आपकी नहीं है। फिर उसके बाद मैम ये लिस्ट जो है सारी इस तरह से सबके सिग्नेचर होकर मैनेजमेंट से होती है। दो हमारे टॉपर्स हैं जिनके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है टॉपर्स का। मेंटरिंग का भी ये भी दिखाना है। हाँ दिखा दीजिए, आप जिसके कोऑर्डिनेटर वो कर दीजिए। मैं मेंटरिंग भी कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसकी फाइल है। नॉर्मली बच्चों को आप सारे पर्सनल एरिया में भी करते हैं, प्रॉब्लम्स की जिनको आर्थिक प्रॉब्लम थी, मनी प्रॉब्लम थी, तो उन्हें हमने यहाँ पर एक स्टार्ट किया है, मतलब स्टूडेंट सपोर्ट कमेटी बनाई है। तो उसके थ्रू जो है वो तो हम लोगों ने देख ली है। तो मतलब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी बच्चों में, तो ये प्रिंसिपल मैम ने स्टार्ट कराया है। और बच्चों को और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे सोशल मीडिया से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना होता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह से करें। या फिर कॉलेज में कुछ भी उन्हें कोई रिकॉर्ड करते हैं। जी इसमें करते हैं। ये साथी वो देख रहे हैं हमारे जो तो ये बच्चे आते हैं यहाँ पे, पूरे दिन आते रहते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर साइंस के सबके पास आते हैं। बाकी जो स्किल्स के बेसिक वाले एक्सेल के, टैली के, प्रैक्टिकल्स होंगे ना, वेंडर्स तो प्रैक्टिकल हमारा कॉन्टैक्ट है, तो वो फिर करके बाद ज़्यादा अगर ये और 26 है 30 प्रैक्टिकल टाइप में पढ़ा रहे हैं ना इनको, उनका तो वहाँ से हो जाएगा। और जो कंप्यूटर साइंस पेपर है वो अलग से है पेपर, वो हर एक सेमेस्टर में एक पेपर है। एक पेपर है हर एक सेमेस्टर। ठीक है, तो उसकी पढ़ाई भी और पेपर भी, वैल्यूएशन सब आप करेंगे। बताइए।
आएंगे कि नहीं आप लोगों को? मैम हमने कंफर्म किया है लेकिन ठीक कोई रिस्पॉन्स कोशिश की है। अब कॉमर्स का यूनिट और मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज स्किल्स एंड वेलनेस मैनेजमेंट yes ma'am these skills that we have under the skill development course ओके ये सब सेटअप है हमारा ये भी क्लास भी है दिस आल्सो डबल्स एज अ पीएड लैब तो वो क्लास से 2 मिनट्स के बाद बाकी जो है वो पीएड की क्लासेस पढ़ाते हैं। रखे हुए हैं कंपनी ये लैब है आपकी? हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या रखा है? में एमओई, एओई, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स कैसे इसको मैम 500 के अराउंड बुक सेंस में इनकम टैक्स कैसे भरना है उनको बताते हैं? आईटीआर फॉर्म्स। हाँ मैम, पहले तो ई फाइलिंग एक सब्जेक्ट ही था, प्रैक्टिकल भी होता था उसमें। पीछे ज़्यादा भी है, कुछ बताइए बजट पे। इससे क्या संबंध? स्वाति का मैं फ्री लेक्चर्स में ना बच्चे यहाँ पर बहुत ईजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्टडी पॉइंट की चीज़ें, स्ट्रेस फ्री। आपने प्रिपेयर किया है? यस मैम। प्रिपेयर नहीं किया है? मैम एमबीए मेरा फर्स्ट ईयर होके रह गया। क्या स्पोर्ट्स का आपका स्पेशलाइजेशन? मैम मैंने नेशनल खेला हुआ है। मैंने नहीं कौन सा गेम खेलते हैं? मैम मैं कबड्डी और एथलेटिक्स। साल भी शूटिंग में वो नेक्स्ट वन का कॉम्पिटिशन। या आपके यहाँ आए या कहीं और गए? आपको मैम ये इसमें पॉलिटिकल कॉलेज है। ये पर्टिकुलर उसके लिए यूज होती है? दोनों ही होती हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हाँ। तो होती है, अदरवाइज अगर स्ट्रेंथ कम है तो ऊपर वाली तो ये आप कर लेते हैं अपने लेवल में? जो इनका मेंटेनेंस हो वो देखते हैं, बाकी कर रहे हैं, सब देख लेते हैं। वो सामने है। सर ये फ्रूट्स आ रहे हैं ये। इंस्टीट्यूशन ने ओवर द इयर्स नीट को पूरा किया सिंस 1969. So it was established with great commitment to women. Those days when it was not very common. आप बताओ। मैम वंशिका दत्ता, हमारा एथलेटिक्स का गोल कबड्डी हम तीनों गेम करते हैं। एथलेटिक्स में क्या करते हो? मैम लॉन्ग है। हाँ। ओके। और अभी फर्स्ट ईयर में हो या मैम यूनिवर्सिटी? इस बार हमारा फाइनल है बीकॉम तो यूनिवर्सिटी में खेले हो? यस मैम। क्या आपने कॉलेज इंटर कॉलेज? हम तो यूनिवर्सिटी अभी गए थे। अच्छा, कॉलेज की ओर से? यस कॉलेज की टीम में हो? यस मैम। ठीक। आप बताओ। वो है और हम एथलेटिक है, पर मैम मेरा मेन गेम है कबड्डी है। कबड्डी जी। कहाँ तक खेले हो? मैम मेरा कबड्डी अभी नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है मैम, देहरादून। अच्छा जी है, अभी डेट फिक्स नहीं है। अब आप ये बताओ कि नॉर्थ में होती है, महाराष्ट्र वगैरह में तो सेंट्रल में शुरू हो गई है। Nothing. Earlier it was. Earlier they used to be associations, कुछ subject associations थे जैसे कि हाँ, वो UGC का निकाल। हाँ वो निकाल के बैंक पे उसकी मिनट्स या कुछ है। क्योंकि इतना तेजी से सब ये नॉलेज जनरेशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग बदल रही है,
इससे कॉप अप करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है जो ऑलरेडी एजुकेशन में है, तो आउट ऑफ एजुकेशन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे करेगी। हम लोगों को बिल्कुल एब्रस्ट अपना नॉलेज रखना है। तो आपके एंड में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के एंड में क्या होना चाहिए इन राइटिंग, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स बट अकॉर्डिंग टू यू अंडरस्टैंड कि इवैल्यूएशन का एक तरीका गलत है। इट डजंट मीन कि इवैल्यूएशन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कराती है। ये जा सकता है कि KL कॉलेज टू मेक इट मोर स्टूडेंट सेंट्रिक, ये वाला सजेशन रहेगा। सो देन इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए रखे जाते हैं सब जगह कि वो बता पाएँ कि क्या क्या कहाँ पे कमी रहे और कैसे करना है। A very warm evening and heartiest welcome to one and all present. Honored by the gracious presence of our esteemed guests of lecturing in this cultural evening. We have with us Chairperson Professor Surekha Natwal, Vice Chancellor, University, Dehradun, Uttarakhand. Member Coordinator, Professor Priyamvada Shrivastava. किसी कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रज्वलन से करते हैं। हमारा भी दूत है कि वे आए और मंगलाचरण करें और साथ ही गुड लाइफ
and their family may take it with ease. So let's welcome the students for an energetic performance. The 5 R's of zero waste are बगीचे का कचरा, पूजा के पुष्प आदि इसका खाद यानी कंपोस्ट बना दी जाती है, जो कि मिट्टी की उर्वरता फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आता है। इसे हम किचन गार्डन में यूज कर सकते हो, किसी तरह से पेड़ पौधों में। नेक्स्ट आता है हमारा नीला कूड़ा। इसमें आ जाता है सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, थर्माकोल्स, टूटे हुए बल्ब आदि। ध्यान रखें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो बचे हुए हैं या फिर बैटरीज हैं, उसे हम कूड़ेदान में ना फेंककर जो हमारे घर के पास में ई कचरा संग्रहालय केंद्र है वहां पर दे दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंडिया Yarakundi is a monument located near the President's Estate, Agni Junction, where Sardar Patel Park meets Mother Teresa Crescent, New Delhi, India, commemorating the. what a wonderful performance. After all, too big for our frail understanding to fully comprehend. Nevertheless, we have to build our life on the theory which contains the maximum truth. Now, we are moving towards the end of the program and I would like to request our members of the national team to please say a few words. The committee coordinator, Dr. Venu Malinda, for the Thank you. सांस्कृतिक जिन्होंने हमारे बौद्धिक और हमारे चित्राओं का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और हमारी महाविद्यालय की फाउंडर। इसी के साथ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर और सांस्कृतिक परिषद के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे महाविद्यालय की समस्या शिकायतों में इसमें बहुत सहयोग किया है और अंत में मैं सबसे पहले छात्राओं का बहुत ही आभार और धन्यवाद और प्यार और आशीर्वाद के साथ कहना चाहूँगी। साथ ही हमारे ऑफिस स्टाफ और हमारे श्रमजीवी स्टाफ ने भी इसमें बहुत थैंक यू। Now we invite the students of the choir group.
तुरंत